السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کے آغاز میں ہی آپ کو لیے چلتے ہیں لطیفی اسٹریٹ کے باسیوں کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اللہ کا شکر۔ کیا حال چال ہے لطیفی اسٹریٹ کے باسیوں کا؟ الحمدللہ لطیفی اسٹریٹ تو اسی طرح شاد آباد ہے، مگر وہاں جو کچھ شرف پسند عناصر ہیں انہوں نے لطیفی اسٹریٹ کے ماحول کو خراب کر رکھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا اشارہ ہمیشہ کی طرح کس کی طرف ہے؟ آپ کی جان کو ایک ہی دکھ ہے، چغتائی صاحب۔ بھائی ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اللہ کے فضل سے کوئی اشارے بازی آتی ہے۔ جب بھی بات کریں گے سیدھا کریں گے تیر کی طرح۔ آپ کو محلے میں چغتائی صاحب کے علاوہ آپ کے بٹ صاحب نظر نہیں آتے؟ نہیں، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، مگر اتنی دعا ضرور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ گنجے کو ناخن نہ دے، بہرے کو موبائل نہ دے، اور چغتائی جیسے لوگوں کو دولت نہ دے۔ سڑو وہ کیا کہتے ہیں، ویرانیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ اسی کے بروزن کہہ رہا ہوں، بے شرمیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو یہ چغتائی بنا دیا۔ اپنی زبان کو لگام دو لطیفی، میں تمہیں بتا دوں۔ ارے زبان تو آج ایسی کھلے گی کہ تیرا باپ بھی کنٹرول نہیں کر پائے۔ میرے باپ تک مت پہنچنا، میں تمہیں بتا دوں۔ چغتائی زبان دندہ تھلے رکھ۔ چپ کرو، صرف 4 فٹ کا فاصلہ ہے آپ کے گیرے بان تک ہاتھ پہنچنے کا۔ نہیں 4 فٹ کا تو تم خود ہے، تو کیا 4 فٹ کا فاصلہ سنائے گا؟ یعنی جنید میاں کیا زمانہ آ گیا ہے کہ ساری سردیاں موصوف نے گلی کے بیچوں بیچ لطیفی اسٹریٹ جس کا نام ہے، اس گلی کے بیچوں بیچ 4 بھائی بچھائی رکھے۔ چلے خیر ہے، 2 منٹ کے لیے لطیفی اسٹریٹ ہی بند ہوئی ہے نا، کون سی لاہور کی مال روڈ بند ہو گئی ہے؟ لطیفی اسٹریٹ بند ہونے کی کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے کہ لطیفی اسٹریٹ پورے لاہور میں مشہور ہو چکی ہے، تو وہ تو لوگوں کو پتہ ہے اگر یہاں سے گاڑی گزاریں گے تو ایک بےہودہ شخص وہاں پہ 4 پہ بیٹھا نظر آئے گا، اس لیے گاڑی اسی مناسبت سے اس طرف لے کے آتی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ ہماری محلے کی، ہماری گلی کی خواتین گزر رہی ہوتی ہیں اور موصوف جو تاغا جہانگی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا حساب ان سے کون لے گا؟ بہت اچھے سن بات کو تم غلط رنگ دے رہے ہو، میں تمہیں بتا دوں۔ سن بات تو نے لینا ہے، بتا ذرا، سن بات لینا ہے تو اپنی چھت کو خالی رکھ، ادھر کیوں کبوتروں کی رہائشی اسکیم بنائی ہوئی ہے؟ چھت پہ بیٹھو تو کہتے ہو کہ بے پردگی ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ بے پردگی ہوتی ہے؟ آپ لوگ۔ ہمارا کیا دماغ خراب ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ موصوف جتنے ہیں، منیر کے اوپر سے دیکھنے کے لیے بھی نیچے 3 فٹ کا سٹول چاہیے، اور اگر کبوتروں کی رہائشی زمین میں پھر رہے ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبوتروں کے کھانے والے برتن کون سے ہیں اور بیچ میں چغتائی صاحب کون سے ہیں۔ حدود کراس مت کرو۔ ارے کون سی حدود ہو چکی کراس؟ بس آپ گھونگھٹ نکالیے گھونگھٹ۔ اچھا جی، آپ نے بتایا نہیں۔ ویسے چغتائی صاحب آپ کیوں گلی میں بچھاتے ہیں 4 پائی؟ نہ تو آپ مولا جٹ ہیں نہ بشیرہ ہیں آپ۔ جتنا حق آپ لوگوں کا ہے اتنا ہی حق میرا اس محلے پہ۔ ابھی بتاتے ہیں تمہارے حق کو۔ دیکھیے، ایک تو گلی کے اندر بےہودگی، ایک چھت کے اوپر بھی۔ چھت کے اوپر موصوف نے اس سے ذات کے اور ایسے ایسے فوش کبوتر رکھے ہوئے ہیں کہ جب بھی آپ کی بھابھی چھت کے اوپر جاتی ہیں فوراً ان کو دیکھ کے گٹرگوں کرنا شروع کر دیتی۔ اچھا۔ اور چند بےہودہ تو ایسے ہیں کہ اڑ کے ہماری منڈیر پہ آ بیٹھتے ہیں اور آپ کی بھابھی کی طرف دیکھ کے یوں اشارے بازی بھی کرتے ہیں۔ نکالیے گھونگھٹ، ہم گٹرگوں کر رہے ہیں، گھونگھٹ نکالیے۔ پیری صاحب کیوں آپ غصہ کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کبوتر یہی کہتے ہو، گھونگھٹ نکالیے، گھونگھٹ نکالیے، گھونگھٹ نکالیے۔ ایسے بھی انجان نہیں ہیں ہم نے باقاعدہ ان کی گردن کی حرکت کے ساتھ گا کے دیکھا ہے وہ دل میں کیا کہہ رہی ہے۔ ماہی آوے گا میں بلانا لے دھرتی سجاؤں گی۔ بالکل لکا کبوتر لگ رہے۔ یہ لکا
और मैं लकी जिनकी मुझसे शादी हो गई। एक तो आपकी मोहब्बत खत्म होने का नाम नहीं लेती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टूट के प्यार करती है आपकी भाभी। घुटना भी टूटा हुआ है, दोनों टखने भी टूट गए थे, ऊपर वाली छत से एकदम घबरा के नीचे गिर गई थी, और कोहनी की हड्डी भी टूटी हुई है, और इसी बदबख्त ने क्रिकेट वाला गेंद मार के तो हड्डी तोड़ी हुई है कोहनी की। हमारे ऊपर इल्जाम ना लगाइए, सीधी तरह बताइए आपके साइकिल के पहिए में आ गया था चच्ची का दुपट्टा। तो ऐसे हमने जब कहा कि आपका तो कितनी सारी हड्डियां टूट गई है तो कहने लगी कोई बात नहीं, हम आपसे टूट के प्यार करना चाहते हैं। इन्नियां हड्डियां टुटियां लतीफी साहब, तुसी भाभी दी गल कर रहे हो या कमांडर माना जट दी गल कर रहे हो? माना जट बना दिया मुझे। घूंघट निकालिए। हमने आपसे कहा था आपके हुस्न पे जट भी फिट होता है, बट भी फिट होता है। अच्छा लतीफी साहब को भाभी की किसी और हड्डी टूटने का गम नहीं था, ये जब कोहनी वाली टूटी है ना फिर इन्होंने बड़ी कमी महसूस की है, क्योंकि 3 माह तक भाभी फिर ये कहने के काबिल नहीं थी लतीफी साहब दाल चावल पकाऊं। पूछती क्या, पका ही नहीं सकती थी, डोई फेरने के लिए तो मुकद्दस जाती थी इनके घर में। ओए होए होए, इनकी तो सबसे बड़ी डिश ही दाल चावल है। ऐसे पाए के नवाब हैं ये। पाए के तो है ना। अरे पाए भी पकाए हैं कई दफा अल्लाह के फजल से। जब बड़ी ईद पे पूछिए जरा बट को, बट के साला साहब जो पाए दे के गए, बड़े पाए जब आए थे, बड़े के आए थे पाए, तो 2 पाए आए थे, एक बट के घर में पके, एक पाया हमारे घर पका था। पूछिए पूछिए, हमको झूठ बोल रहे हैं, पूछिए। पकाए थे, बीच में आलू डाल लिए थे। पाए आलू भी पहली दफा ही सुना, ये कहाँ के नवाब है? पायों से भी नफरत करवा दी। हम अल्लाह के फजल से आपकी भाभी को जिंदगी में साथ लेके चले हैं। ये पाए नहीं खाती, हमने कहा ठीक है ये आलू खाती रहेंगी, हम पाए खाते रहेंगे। घूंघट खा लिए ना। अच्छा जी। आपकी तारीफ हो रही है। अच्छा नजर पड़ रही है लोगों की। जो आज ये है पोजेसिव है बहुत ज्यादा लतीफी साहब, भाभी के मामले में पोजेसिव। अरे भाई जिंदगी इनके लिए गुजर रही है, वरना कब की खत्म हो चुकी होती। हाय लतीफी साहब ऐसे तो ना बोले आप। बस कर दे, ये बकरियों ही अफगानिस्तान की फिरदौस बेगम बनी होती है। दुनिया आज ये है कि हम ये नहीं कहते कि इनका कोई हक नहीं है मोहल्ले में, मगर ऐसे हक से बाज रहना चाहिए जिससे आपके दूसरे मोहल्लेदारों की हक तलफी हो रही है। अगर वो 5 मिनट के लिए चारपाई बिछा के 2 किलो खा लेंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी यार, बर्दाश्त भी पैदा कर लें। आप बताइए जरा, इस तरह की चीजें 5 मिनट में सूखती हैं? कहते हैं कि हम धूप लेने के लिए आते हैं। भाई बात ये है कि जब आप चारपाई बिछा लेती हैं मोहल्ले के अंदर, तो चलिए हम लोग तो गुजर जाती हैं, बट और बटनी भी उधर ही रहती है। जरा पूछे, कई दफा बेचारे उधर खड़े हो गए चारपाई के पाए के पास हाथ में जा रहे होते हैं, तो उठा ले यहाँ से चारपाई ताकि हम गुजर जाएं। बिल्कुल। आधी से ज्यादा तो गली मौसूफ की चारपाई ने घेरी होती है, तो बाकी बचा क्या यहाँ से बट गुजर जाए, वो बट्टी क्या जो 3 फुट की जगह से गुजर जाए। 2 फुट 3 इंच कद है उनका, कितनी बड़ी चारपाई ये बिछा लेता हो। यही तो रॉन्ग है, खुद छोटे हैं, चारपाई बड़ी सी है। जुनेद अंकल आज उसी चारपाई पे इस्तराज है जिस चारपाई पे लेट के आके चौड़े होके कहते हैं निकालो ताश, एक बाजी हो जाए। जब बाजी खत्म होती है उसके बाद कहते हैं चुगताई, अंदर से दूध पत्ती तो मंगवाओ। अब कहाँ गई वो चारपाई? अरे हम कोई बदमाश नहीं है जो दूध पत्ती पीते फिरे, और जो वहां पे लेट के ताश मंगवाते हैं वो भी वहां नहीं होता है। लतीफी साहब ऐसी तुसी लड़ाई पाई है, ऐसी किच पाई है। जुनेद साहब वो लतीफी स्टडी खत्म होने लगी है, खत्म होने लगी लतीफी जी, उसे अंडरपास बनने लगा जी। ओ भाई कौन सा अंडरपास है, मैं देखूंगा कौन उधर अंडरपास बनाता है। मेरी लाश तो ही अंडरपास बनेगा। आपकी लाश चली जाएगी तो फिर अंडरपास की जरूरत ही नहीं रहेगी। बहुत बना बनाया ब्रिज मिल गया ना। नहीं जो हम एहतजाज कर रहे हैं, हमने उधर बैनर लिख के लगवा दिया है। अच्छा, जो इधर आएगा अंडरपास बनाने के लिए, लतीफी स्ट्रीट को खत्म करने के लिए, हम 2-2 हाथ हो जाएंगे उसके साथ। अच्छा, तो आपको पता है कि नए आईजी ने कहा है कि जिस बंदे ने भी ऐसी तड़बड़ की उसको पकड़ के अंदर कर दूंगा मैं। ईमान से? हाँ। तो वो आपके दोस्त नहीं है? कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है उनकी। बट फिर क्या ख्याल है? फिक्र न करो लतीफी भाई,
मेरी लाश से गुजर कर ही अंडरपास बनाएंगे। ये बात है। ਉਹ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਤੇ ਕਈ ਦਾਬੜਾ ਫੜ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और लोगों को बता रहे होते यहाँ मेरा घर था, यहाँ ही मेरा था, गालिबन यही था। ठेकेदारी इस वजह से निकाल देता है कि ट्रैक्टर से ज्यादा डीजल ये आदमी पी गया। यही मेरा घर था, ये जहाँ पे ट्राली का पहिया है ना, यहाँ पर मेरा ड्राइंग रूम होता था। जुनैद मियां अगर अंडरपास बनेगा तो उसका नाम फिर लतीफी अंडरपास रखना पड़ेगा। क्यों लतीफी अंडरपास? आपका कारनामा क्या इस मुल्क में सिवाय साइकिल पे आने जाने के? अरे तुम क्या जानते हो, कई नस्लों से हम नवाब लोग हैं, हमारे घर के नीचे से शायद खजाना भी निकल आए, और शायद सारे अंडरपास का खर्चा हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ एक देग में ही डाल के नीचे रखा हो। लतीफी भाई अगर खजाना निकल आया, खजाना आप ले लीजिएगा, खाली देग मुझे दे दीजिए। आपने क्या करनी है, दूसरी देग पहली तो संभाल नहीं सकते। ये भट्ट जैसे लोग होते हैं ना, जिनको हीरो से भरी देग मिलती है, कहते हैं काश इसमें हीरो की बजाय चावल होते हैं। ये देखे ना, आज पता चला, इसी उम्मीद पे इतनी दहाइयों से लतीफी साहब ने लतीफी स्ट्रीट नहीं छोड़ी, वरना लतीफी साहब को कोई कमी है? बंगलों की, हवेलियों की, नवाब लोग हैं। जी जी जुनैद भाई आप ठीक फरमा रहे हैं, लतीफी स्ट्रीट नहीं गिरनी चाहिए, खुदा के लिए इसे रोकिए। चुगताई भाई हमारे वहाँ पे 4 बजे बिछा के धूप सेकते हैं। आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हम लोगों को इकट्ठे होने का ख्याल उसी वक्त ही आता है जब कोई सर पे आन पड़ती, मुसीबत पड़ी है तो इकट्ठे हो गए आप। नहीं जुनैद मियां ये बात नहीं है, हम तो भाई भाई हैं, मगर देखिए ये गवर्नमेंट वाले नाजायज कर रहे हैं, ज्यादती है ये तो। भाई उन्होंने कुछ सोच के अंडरपास प्लान किया होगा ना, उस जगह कोई और रास्ता नहीं होगा। जुनैद मियां आप खुदा और आप हुक्मरानों को रोकिए, लतीफी स्ट्रीट बचनी चाहिए, हम सब बहन भाई बन के रहेंगे। अच्छा क्या बहन भाई, हमें तो बीच में से निकाल दीजिए। वो आपको निकाल के ही बात कर रहे हैं, आप हर वक्त मतीरा बनी होती है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तरक्की याफ्ता ममालिक में 25 से 30% लोग जो हैं वो हर 6 माह में रैंडम मेडिकल टेस्टिंग या रेगुलर टेस्टिंग करवाते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स का अंदाज़ा ये है कि 5% है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है। यार जुनैद, ऐसे अब कई वाक़यात आने शुरू हुए हैं कि एकदम ज़हन में आता है कि यार ये कितना ज़रूरी है, ये जो हम जनरल अपनी हेल्थ के हवाले से अपने टेस्ट करवाते हैं। तो ये मतलब बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनका एकदम पता चलता है जी उसको फलां बीमारी निकल आई है। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती में रखे। एकदम पता चलता है उई उसका ये निकल आया है और वो आखिरी स्टेज पे है। तो मैं समझता हूँ कि अब मेरा ख्याल है, अब जैसे दूसरे मुल्कों में तो ये रवाज है कि लोग अपने टेस्ट करवाते रहते हैं, अपनी हेल्थ के हवाले से बाखबर रहते हैं। हम लोग वैसे हर मामले में ही बेखबर हैं, मगर अपनी जात तक तो मेरा ख्याल है ये अब अपनी सेहत के आदत पड़ जानी चाहिए। पता है कितना फर्क है? तुमने कहा ना कि बाहर के मुल्कों में और हमारे यहाँ, पता है रेशो क्या है? क्या? दुनिया भर में खास तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक में 25 से 30% लोग जो हैं वो हर 6 माह में रैंडम मेडिकल टेस्टिंग या रेगुलर टेस्टिंग, अपनी मेडिकल टेस्टिंग वो करवाते हैं। हमारे यहाँ एक अंदाज़ा ये है, डॉक्टर्स का अंदाज़ा ये है कि 5% है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है। 1% लोग भी नहीं करवाते। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की इंतहा है कि हम सब कुछ जानते बूझते हुए भी अनजान बने हुए हैं, और हम ये हर रोज़ सुनते हैं अपने इर्द गिर्द अजीज़ों, दोस्तों, रिश्तेदारों में, आलियाने मोहल्ला बताते हैं। हम ड्रामों में आम तौर पे जुमला सुनने को मिलता है डॉक्टर्स की तरफ से कि आपने बहुत देर कर दी, यही जुमला, आपने बहुत देर कर दी, और स्टेज 4 है, स्टेज 3 है। कैंसर के अलावा भी किसी भी हवाले से मामला बहुत बिगड़ चुका है जी। इसमें सारे आगे फिर आपने कहा ना 0 अगर रेशियो है तो सारे ही हैं, पढ़े लिखे भी, अमीर भी, सारे ही हैं, सब किसी को भी नहीं है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनकी भी मैं बात बता रहा हूँ, वही ये होंगे जो बहुत ही कोई एलीट क्लास होगी या बड़े कोई
बाहर के कल्चर के आदी होंगे, जो बाहर से पाकिस्तान आके आबाद हुए होंगे, वो इस बात का ख्याल करते होंगे। अच्छा, मैं बताने ये लगा था कि WHO की रिपोर्ट है, सितम ज़रीफ़ी की इंतहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है कि अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो हर 6 माह बाद अपनी जो मेडिकल टेस्टिंग है वो करवाना शुरू कर दें तो जो बीमारियों के नतीजे में अमवात होती हैं उनमें 50 से 60% कमी वाक़ई हो सकती है। और बीमारियों के नतीजे में पूरी दुनिया में पता कितनी अमवात होती हैं सालाना? 4 करोड़। इसका मतलब है कि अगर दुनिया में मेडिकल टेस्टिंग का रिवाज फ़रोग पा जाए तो ये 4 करोड़ अमवात जो है सिर्फ 2 करोड़ रह जाए, 2 करोड़ से भी कम हो जाए। लेकिन अब इस पे सबसे बड़ा मसला क्या है? ख़ास तौर पे जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं या पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक ही बात की जाती है कि यहाँ तो दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो बिला ज़रूरत, इसको हम बिला ज़रूरत कहते हैं। हालांकि बिला ज़रूरत नहीं होती। हमारा जो बुनियादी तसव्वुर है ना, ये जो रैंडम मेडिकल टेस्टिंग है, इसके बारे में हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, वही गलत है। हम इसको कहते हैं कि जी क्यों टेस्ट करवाए हो, कहते हैं एवं ही। ये एवं ही नहीं है, ये एवं टेस्टिंग कोई नहीं होती, ये बिला जरूरत नहीं होती, ये करवाने ही करवाने हैं आपने। और ये आप अगर इसे बिला जरूरत का नाम दें तो ये बिला जरूरत करा के आप आगे बहुत सारे, अल्लाह माफ करे, बजट से बच जाते हैं। एग्जैक्टली, अब खर्चे से बच यही मैं जाते कहने लगा था। देखें, अगर हम अपने हार्ट के और ब्लड के जो बेसिक टेस्ट हैं ये करवाते रहे और जो 3 यूरिक एसिड वगैरह, ये 6 माह बाद एक दफ़ा आप चेक करवा लेना, तो इस पे कोई जो एक औसत अगर मैं ख़र्चा लगाऊं तो वो 6 से 7 या 6 से 8 हज़ार रुपए के दरमियान आता है। इसके लिए कई चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। हाँ, मतलब कई एक टेस्ट हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और बुनियादी नौइयत के हैं। फिर भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो एक गालिब अक्सरियत है आबादी की, वो फिर भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्या वो रेगुलर टेस्ट करवाते हैं? वो 6 माह बाद टेस्ट करवाते हैं? कोई भी दिल पे कोई भी नहीं करवाता, कोई भी नहीं करवाता ना होने के बराबर है। अच्छा, अब जो लोग दरमियान में है कि बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर सकते हैं, उनसे बंदा पूछ सकता है कि यार वो 1 या 2 टाइम बाहर जाके जो खाना खाते हैं वो स्किप कर दें यार, वो स्किप कर दें तो 6 से 8 हज़ार रुपए वो बचा सकते हैं आराम से और एक बड़ी क़यामत से बच सकते हैं, बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। एक बीमारी आपको पहले ही पता चल जाती है, ये बाद में जो बढ़ जानी है, इसका पहले इसका काबू डाल लेंगे। एग्जैक्टली। अब ये होता है, ये है कि अगर आपको पता चल जाए मुझे हार्ट का मसला है तो आप उसी वक्त एहतियात शुरू कर देते हैं। अगर आपको शुगर का मसला है आप उसी वक्त से एहतियात शुरू कर देते हैं। अगर आपके ब्लड, वो 20 किस्म के मसाइल आपको पता चलते रहते हैं कि ये खाना है ये नहीं खाना, वो टाइमली पता चल जाए तो आप उस मुसीबत से भी बच जाते हैं। ये बात बुरी लगी है, ये खाना है और ये नहीं खाना, नहीं खाना, ये खाना है। चलो यूं कर लो कि ये बहुत ज्यादा खाना है और ये बहुत ही ज्यादा नहीं खाना, नहीं खाना, बहुत ज्यादा खाना है, अभी तो बहुत ही ज्यादा नहीं खाना। अभी तो मैंने बाबूजी टेस्ट भी नहीं करवाए तो आपने कह दिया ये ना खाना वो ना खाना। वैसे करवा के देखो तो डॉक्टर तुम्हें कहेगा कि जी आपने खाली पानी भी नहीं पीना, आपने सब कुछ खा लिया। अच्छा सर, वो हमारे यहाँ पे ये भी सोच है कि मोटरसाइकिल पे पैसे लगा लेते हैं कि इन्हें 4 दिन कट जाना था, जिन्हें चलानी है टेस्ट कोई नहीं। बड़ी जबरदस्त बात की, बहुत अच्छे जुल्फी, माशाल्लाह, चैन च फंसी टाकी। ये वाकई उससे कितनी जबरदस्त बात, मोटरसाइकिल से मुझे याद है, चैन च फंसी टाकी यार, टाकी बच्चियां दी हाकी हुंदी है। तुम देखो यार कि एक तो पहले उसको टाकी का है और वो भी चैन में फंसा दी। खुदा का खौफ करो, चेन में फंसी हुई टाकी तो लीरो लीर हो जाती है बेचारी। वो तो इतना खूबसूरत, देखो उसने व्हाइट कलर के शूज पहने, इतने सजे चिट्टे रंग दे शूज मैंने आज तक किसी को नहीं देखे। क्या कहने बूट थे माशाल्लाह, मेरा ख्याल है 8 को नंबर ने, मगर मुंह बेचारे दा 2.5 नंबर। तो मैं ये कहना चाह रहा था, सीरियस बात हो रही है, हाँ जी कि ये जो है ना जी टेस्ट जी, ये जो मेडिकल टेस्ट होते हैं जी, ये पाजनैद थोड़ा सा ना जो लेबोरेटरीज हैं उनकी यही भी मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट की उनकी ये तरफ से। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान में जितनी भी प्राइवेट लैब्स काम कर रही हैं वो बड़े करोड़ों अरबों रुपया कमा रही हैं, उनको इस बात का पाबंद करना चाहिए हुकूमतों की तरफ से कि आप ज़रूर इतने पैसे कमाएं, लेकिन आप अपनी जितना भी आपके पास पेशेंट आता है
اس کے پاس جتنے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں آپ اس کی کچھ پرسنٹیج جو ہے یا تو سبسڈی رکھیں یا بالکل ایبسولوٹلی فری کر دیں. دے کین افورڈ, وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. بہت مہنگے ہو گئے بہت مہنگے ٹیسٹ ہے نا. اس لیے اگر کوئی جواب میں یہ کہہ دیتا ہے جناب آپ یہ تو بھرے پیٹ کی مستی ہے یہ ٹیسٹ کرانا, تو وہ بالکل غلط نہیں ہوگا. نہیں آگے سے یہ کہتے ہیں بھائی جی 15 کروڑ دی تو مشین آئی ہے. یار 15 کروڑ دی مشین دے پیسے تو 3 مہینے جی پورے کرنے, بس کرو. یہ بہت, یا چلو وہ اگر صحیح بھی کہتے ہیں پرائیویٹ لیب والے, تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو یہ سٹیپ اٹھانا چاہیے کہ کوئی ایسا ادارہ بنا دیں ہسپتالوں کے اندر. ویسے تو لیب ہیں مگر وہ لیب جو ہیں وہ واقف کار کوئی بھگتتی. یہ ہیلتھ کارڈ میں شاید یہ آخری دنوں میں کنسلٹیشن ہو رہی تھی کہ وہ لیب ٹیسٹنگ کو شامل کر لیں گے. اگر وہ بھی ایک سہولت ہم پہنچا دی جائے میرا خیال ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا مطلب یہ احسان عظیم ہوگا اس غریب قوم پہ. اگر میڈیکل ٹیسٹنگ 10 لاکھ روپے میں وہ جو ہے اس میں شامل کر دی جاتی تو ظاہر ہے کہ شوق سے تو کوئی نہیں کرواتا نا. ایک میڈیکل ٹیسٹ کے لیے جانا اور اس کی زحمت اٹھانا شوقیہ تو کوئی نہیں کرواتا. 6 ماہ میں ایک دفعہ اگر یہ سہولت دے دی جائے تو یہ بہت بڑا یہ احسان ہوگا اس قوم. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے اگر خود بھی ہمیں تردد کرنا پڑتا ہے, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی کوئی ضرورت جو ہے وہ یا جو تحریشات ہیں ہمارے ایک عام آدمی کے میڈیوکرز کے بھی ہمارے جو مڈل کلاس ہے ان کے بھی بہت سارے تحریشات ہوتے ہیں. اگر ان کو تھوڑا سا سیکریفائز کر لیا جائے اور 6 ماہ بعد نہیں, چلو یار اگر بہت ہی تنگ ہے تو اب سال میں ایک دفعہ ضرور کرا لیں. ہم تو کرواتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ مصیبت آن نہ پڑے اور ڈاکٹر کہے, بلکہ جب اس وقت بھی ہم یہ ضرور ڈاکٹر پہ بھی شک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں ان کا کمیشن ہے نا جی ڈاکٹر صاحب کا. یار کمیشن ہوگا لیکن تمہارے لیے ٹیسٹ ضروری ہیں بھائی. تم اس وقت جو ہے وہ ان کے کمیشن کی انویسٹیگیشن پہ نہ جاؤ, کہیں اور سے کروا لو لیکن ٹیسٹ ضرور کرواؤ. ہاں جی ہاں جی جی. اس کی مثال میں بہت ایک انٹلیکچوئل سی یہ دیا کرتا ہوں کہ ہانڈی پکاتے ہوئے جو خواتین تھوڑی تھوڑی دیر بعد ڈوئی پھیرتی رہتی ہیں نا انہوں دی ہانڈی نہیں لگتی. تے جیڑی بیچاری ہمسائی نہ گلاں کرن لگ پیندی ہے اپنی تے او دے خاوند دیاں برائیاں کرن بہ جاندی ہے. تے کو 45 منٹ بعد اٹھ کے جدو ہانڈی ویندی ہے تے ادھی تے سڑ گئی ہوندی ہے تے پھر ڈوئی کدے چ پھیرنی ہے. تمہارا تم تشبیہ دے رہے ہو ہانڈی میں ڈوئی پھیرنے کو میڈیکل ٹیسٹ سے, لیکن یہ گوگے پہ صادق نہیں آتی. گوگے پہ ڈوئی نہیں پھیرتی, گوگے پہ دیگ میں وہ کر لوں اگر گوگے کا میڈیکل ٹیسٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ میں میڈیکل ٹیسٹ کراؤں چلے ہی جاؤں. یار میں اس معاملے کی مثال یاد دیتا ہوں نا کہ کووڈ کے دوران ہم نے دیکھا ہے نا کہ جب حکومت نے کووڈ ٹیسٹ جو ہے فری کر دیا تھا تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے بڑی تعداد میں اس سے فائدہ اٹھایا تھا, اور ہم نے جو دیگر دنیا کی نسبت بہتر پرفارم کیا تھا اس میں ایک بڑی وجہ جو تھی وہ بہرحال فری میڈیکل ٹیسٹ تھا کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا. آپ جہاں بھی جاتے تھے آپ گاڑی میں بیٹھ کے ٹیسٹ کروا لیتے تھے. جس طرح پیزا آرڈر کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے, اس طرح ہم میڈیکل ٹیسٹ کروا رہے تھے, کووڈ ٹیسٹ کروا رہے تھے. یار آپ یقین کرو کہ میں نے ایسے ایسے معصوم لوگ دیکھے ہیں اپنے اس معاشرے میں اپنی قوم کے اندر کہ وہ یہ کہتے ہیں کو رہن دیو ٹیسٹ ہے میں کچھ ہے ہی نہ نکل آئے. ہاں بالکل یار کیسی بونگی بات آپ کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کچھ نکل آئے گا تو اس کا ٹائم پہ سدے باب ہو جائے گا, بعد میں نکلنے کا ٹائم بھی نہیں ملنا. بات جو ہے نہ ہوئے کہ ٹیسٹ جو کچھ نہ نکلے تو اسی دنیا تو نکل جائے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. 3-4 ہزار سال پہلے جو ہے وہ پینڈا کو بہت زیادہ خوش قسمتی کی اور فتح کی علامت سمجھا جاتا ہے. دیکھو نا یہ ساڑھے علاقے میں جو زیادہ سوئے ہیں وہ کہتے ہیں منوس ہے, تو انہوں نے اسے خوش قسمتی کی علامت بنایا. اچھا پیارے بچوں, آج ہم زولوجی کے اس کلاس میں ایک ایسا جانور ڈسکس کریں گے جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ دنیا کا کیوٹسٹ جانور ہے تو میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کے بارے میں. پانڈا 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 پانڈا. This is actually called panda, not panda. پانڈا تو پانڈا ہوتا ہے نا برتن, یہ پینڈا ہے. نہیں سر شناختی کارڈ اس نے کس کا پانڈا کا نام پہ بنا ہوگا میرا خیال پھر پانڈے کے نام پہ بنایا ہوگا. نہیں تو نام کیا ہے جی؟ پینڈا. تو پینڈا بھی کہتے ہیں نا یار, پینڈا پورا نہیں ہویا, راستے کو پینڈا کہتے ہیں.
अच्छा, पैंडा में बच्चों जो एक खासियत है वो आप सब में पाई जाती है और मेरा ख्याल है कि सबकी झुकते करता है ना जी ना, झुकते नहीं करता। यानी वो ताना जो हमारी माएँ हमें देती हैं सारी जिंदगी कि तुम्हें कोई काम नहीं है सिवाय खाने के और सोने के। अच्छा, ये जो हमारी अम्मियों का ताना है ये सबसे ज्यादा पैंडा पे फिट बैठता है कि उसको ऑफिशियली 2 ही काम है, या सोना या खाना। वाह वाह वाह, उनकी दुनिया का गोग है। सर भूख तो जाहिर है उसे लगनी है और सो वो इसलिए जाता है कि अल्लाह ने उसके ऊपर एक ऑटोमेटिक कंबल दिया हुआ है, और निगाह होया होता है फिर सो जाए। उसको कहना नहीं पड़ता अपनी बेगम को कि जरा कंबल दे फड़ाई। हाँ जी, बेगम तो सर आपको आपसे बेहतर कौन जानता है, कौन बेगम पकड़ाती है कंबल कहने पे, उठ के आप सिर्फ उसी वक्त ही जब उसके भाई आए होते हैं और शौहर को कंबल कुट चढ़ानी होती है, फिर वो फौरन कंबल लाती है, पाव कंबल है देते चोल पानी दी। अल्लाह माफ करेगा। अच्छा प्यारे बच्चों, पहले भी मैंने आपसे कहा था अगर आपको इल्म हासिल करना है, बड़ा आदमी बनना है, तो आपको इस क्लास में यू विल हैव टू बी सीरियस। बहुत सीरियसनेस के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितना सीरियस सर, थर्मामीटर यहाँ पे रख के बैठ जाए। छोटा सा थर्मामीटर की बात कर रहा है। देखो बेटा, जब तक आप सीरियस नहीं होंगे बहुत पीछे रह जाएंगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। थर्मामीटर रखा है ना मुंह में, तो दोनों हाथों से पकड़ के उठा जिन्हें गार्डर चुकन लग गए। सर ये होते ही नहीं, सीरियस होते ही नहीं, ना इनको अपना ख्याल है ना किसी का ख्याल है। बस ये बच्चा सीरियस है, ये बच्चा एक वाहिद बच्चा है मेरी क्लास का जो पूरी तरह सीरियस है। इसलिए मैं आज का पीरियड भी पूरी तरह सिर्फ आपको मुखातिब करूंगा बेटा। अच्छा सर ये आप गौरी के मुतल्लिक कह रहे हैं? जी गौरी सर सब ये सीरियस नहीं, शर्मिंदा है। मैं क्यों शर्मिंदा हूँ यार, मेरा कोट फटा हुआ है। तुम इसलिए शर्मिंदा हो कि तुम क्लास में सबसे नालायक स्टूडेंट हो। अच्छा जी, पैंडा के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि उसको सवाए खाना खाने के और सोने के और कोई काम नहीं है। 24 में से 12 घंटे वो खाता है और कमोबेश 12 घंटे 3 या 4 हिस्सों में वो नींद लेता सर टीवी पे खबरें भी नहीं सुनता, कुछ नहीं करता। सॉरी सर, एक बात करना चाहता हूँ, इसलिए वो पांडा आपने बताया कि वो सिर्फ सोता है और खाता है, तो मैं भी देखता था कि ये पांडा अमीर जानवर लगता है। हाँ। ये देखना कच्ची बाती का पांडा लगता है। अच्छा, जाहिर है कि जब एक जानवर बहुत ज्यादा खाता है तो जाहिर है कि उसको फिर रफाजत की जरूरत पड़ती है, वो मेंगने बहुत ज्यादा करता है, पॉटी करता है, ठीक है। और यही जो है, अगर पांडा जो है आज नायाब है, बहुत उसकी नस्ल जो है मिट गई है, उसमें उसका ज्यादा जो पॉटी करना है वो भी एक वजह है। अच्छा। कि वो ट्रेस हो जाता है, जहां से गुजरता है उसका पता चल जाता है। बाकी जानवर तो पाँव के निशान से पकड़े जाते हैं ना, तो जिसने पांडा का शिकार करना होता है, जिस बड़े जानवर ने या इंसान ने, तो वो पॉटी के निशान से उसको पकड़ता है जाके। एक जानवर, एक पैंडा जो है वो डेली 38 किलो औसत साइज का जो पैंडा है वो 38 केजी बैम्बू खाता है। इसकी खुराक जो है ना, आपको पता ही होगा, वो बांस के पौधे हैं, ठीक है। तो वो 38 केजी खाता है, जिसमें से 28 केजी है वो खारिज करता है। ओहो, साथ अगर एक स्वीपर रख ले तो ना पकड़ा जाए। सर वैसे ये वाइल्ड लाइफ वालों को चाहिए कि पांडा बचाने के लिए इनमें नैपियां तकसीम कर दे। अच्छा जी, पैंडा के बारे में एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि पैंडा के बचपन या जो नौज़ायदा होता है, जब वो पैदा होता है फिर जवान होता है, उसमें सबसे ज्यादा दुनिया में किसी और जानवर में वजन में और शक्ल में इतना फर्क नहीं होता जितना पैंडा में होता है। अच्छा। यानी जो पैंडा है उसका जो वजन है वो 40-50 केजी तक जाता है, जायंट पैंडा का, ठीक है। लेकिन जब यही पैंडा पैदा होता है तो अपनी माँ के वजन से वो 900 गुना छोटा होता है, 900 गुना छोटा होता है। उसका बमुश्किल जो वजन है वो 100 ग्राम होता है, इतना सा। और दूसरा ये कि कई दिनों तक वो जो आप देखते हैं ना, उस पे स्याह और सफेद पट्टियां होती हैं, ये जब पैदा होता है तो काफी अरसे तक इस पे कोई इस तरह की सफेद या स्याह पट्टी नहीं होती, बल्कि ये पिंक कलर का होता है जब पैदा होता है। की कुदरत देखें कि वो फिर बड़ा होके क्या बन जाता है वो। बस सर वो तुपे फिर के। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि हमें पता है कि पैंडा जो है
وہ چین میں پایا جاتا ہے، اور جو دنیا کو اگر کہیں اور بھی دیکھتے ہیں ہم تو وہ چین سے گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، چین نے 1970 کی دہائی میں سب سے پہلے جاپان اور امریکہ کے چڑیا گھروں کو پینڈا تحفے میں دیے تھے۔ اچھا، اس کے بعد چائنا سے دیگر ملکوں نے جو سب سے زیادہ چیز مانگی ہے، جس کے لیے منت ترلا کیا ہے چائنا کا، وہ پینڈا ہی تھا۔ پینڈا کے لیے باقاعدہ چین کی منت سماجت کی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد پھر چین نے کسی کو تحفے میں یہ پینڈا نہیں دیا، بلکہ چین کی یہ پالیسی ہے، اسٹیٹڈ پالیسی ہے چائنیز گورنمنٹ کی، کہ وہ دنیا کے جس ملک کو بھی اب پینڈا دیتا ہے تو کرائے پہ یا ٹھیکے پہ دیتا ہے، اور 10 سال کے لیے عام طور پہ دیتا ہے، اور وہ ہر سال اس کا $10 لاکھ کرایہ وصول کرتا ہے۔ اور کسی ملک میں نہیں پیدا ہوتا سر جی؟ ہاں، اچھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 70 کی دہائی میں تو اس نے دے دیا نا امریکہ اور جاپان کو، اس کے بعد اب جب بھی دیتا ہے تو یہ چائنا یہ شرائط میں یہ لکھتا ہے کہ جتنی دیر تک یہ پینڈا آپ کے پاس رہے گا یا یہ جوڑا آپ کے پاس رہے گا، اتنی دیر تک اس کے جتنے بھی بچے ہوں گے نا وہ ہماری ملکیت ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی پینڈا ہیں وہ ملکیت جو ہے وہ حکومت چین کی ہے۔ سر جی اس کا مطلب ہے کہ باقی ملکوں کے لوگ صرف سیلفیاں کھچانے کے لیے اس کو بانس کھلائے جا رہے ہیں، بانس بھی کھلائے جا رہے ہیں اور سالانہ $10 لاکھ بھی دے رہے ہیں۔ اور اگر یہ اتنا قیمتی ہے تو گوگے کو پینٹ کروا کے اسے بیچ دے سر۔ گوگے کو پینٹ نہیں ہو سکتا نا، اس کے پھوڑے نکلے بڑے یار۔ سر اس کا مطلب ہے وہ کھا پی کے چاہے سویا رہے یا جاگے پر کماؤ پوت تو ہے نا۔ ہاں، کماؤ پوت ہے، کماؤ پوت تو ہمارا گوگا بھی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پانڈا پوری دنیا میں جہاں مرضی آپ کو نظر آئے اس کی نمبر پلیٹ چائنا کی ہے۔ نمبر پلیٹ چاہیے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ دیکھیں یہ بھی چائنا کی بڑی دور کی اس نے سوچی ہے، اور اس کی بڑی اچھی پلاننگ ہے کہ چونکہ اور دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں، اس لیے اس نے پلان ایسا کیا ہے کہ پھر جاؤ رہتی دنیا تک ساڑھا ہی رہے گا۔ سر جی اس کی کھال کی بھی کوئی چیزیں بنتی ہیں؟ بہت اچھے، اگلے زندہ نہیں دین دے تو دی کھال لان دے۔ وہ عقل نو ہاتھ ماریا کر یار، ٹھیک ہے تیری سری چ مغز نہیں ہے گا مگر اندازے نال تے سوچ لیا کر۔ اچھا، چین نے جب اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا کہ اس کی نسل کو بچانا ہے تو اس حکومت کے نزدیک صرف یہ نہیں تھا کہ اس کی نسل کو بچانا ہے اس لیے کہ یہ بڑا پاپولر ہے، بڑا خوبصورت ہے، بلکہ ان کے بعض جو عقائد ہیں نا وہ پینڈا سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اس کو خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں۔ آج سے کوئی 3-4 ہزار سال پہلے جو ہے وہ پینڈا کو بہت زیادہ خوش قسمتی کی اور فتح کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دیکھو نا یہ ساڑھے علاقے میں جو زیادہ سوئے وہ کہتے ہیں منوس ہے، تو انہوں نے اسے خوش قسمتی کی علامت بنایا۔ کیونکہ آج تو بعد اپنے سارے خاندان کو کہتے خبردار مجھے کسی نے منوس کہا۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جتنا باندھا شاندہ بھی نہیں ہوا اندازے سے ہی لے کے جا رہا ہے، جتنا اچھا اس کا اندازہ ہے مکان بنا ہی کیوں رہا ہے، اندازے سے ہی رہتا رہے۔ کارس نے پہنچنا ہی ہے تو اس کے 2 بچوں نے ایک نے ایک سرے پہ بیٹھ جانا ہے، ایک نے ایک سرے پہ سیسا لینا شروع کر دینا ہے۔ کیا تھا وہ 50-50 میں خاکہ ہوتا تھا بھائی جان، میرا نشانہ میرا نشانہ بھائی صاحب خالی نہ جائے بھائی صاحب۔ یہ اس بندے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ یہ واہ، ٹھا مختلف چیزوں پہ ہے، واہ، اس نے ہاتھ سیدھا کیا ہوا۔ اوہ یہ دیکھو، انج دا بندہ بعد چ کہندا ہوندا بھائی پوری شرٹ پا کے نہیں میرے کو نشانہ لا دے۔ اینو پیسے دے کے محلے لے لے شیشے توڑواندے نے لوکاں دے۔ پرفیکشن دیکھو یار اس کی، واہ، ایک جگہ بھی نہیں چوک رہا اس کا ہاتھ۔ واہ 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 واہ، کیا کہیں، اس کو جوانی میں بڑا فائدہ ہوتا ہوگا، جس لڑکی کو رکا پھینکنا چاہتا ہوگا اسی کے پاس ہی جاتا ہوگا۔ یار ویسے دیکھو تمہارا ذہن ہی گندا ہے، ورنہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ کوئی فلاحی کام کرنے والا بندہ ہے، جس بندے کے گھر میں اگر کوئی دوائی کی ضرورت ہے تو پھینکتا ہوگا تو نشانے پہ جاتی ہوگی۔ تمہارا ذہن ہی ایک طرف جا رہا ہے۔ یعنی مریض دے کان تے وجدی ہوئی جا کے سنگی چ۔ باؤ جی انہوں گھروں باہر کڈیا ہے جی، مصروف رہن واسطے نشانہ بازی کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا چکر نہیں ہے یار،
घर से रोजाना जूते खाता है और बाहर आके ये हर चीज को बीवी तस्वर करके निशाना लेता है और अपने दिल का गुबार निकालता है। सीधी बात है। बस फिर इस निशानाबाजी पे एक ही दफा इसके ससुराल ने इसको अवार्ड देना है। अच्छा, हम देखते हैं आमतौर पे लिख के लगाया होता है पेट्रोल पंप्स पे कि यहाँ पे सिगरेट नोशी ना करें, लेकिन हम सुई के नक्के के बराबर भी असर नहीं लेते, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पता नहीं हम सवाब समझ के पेट्रोल पंप पे जाके सिगरेट सुलगाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा इस सूरत हाल का भी सामना करना पड़ता। ये पेट्रोल पंप वाले को देखिएगा जरा, जो मेरा ख्याल है उसने घबरा गई चपेड़े मार दी, क्योंकि उसने को कुप्पी हाथ में पकड़ी हुई थी तो इधर से उसने सिगरेट लगाया, उसके ज़हन में ठा हुआ है और उसने ठा ठा शुरू कर दी। जिनिया चपेड़ा मारी ने गुस्से च आके माचिस सुट देवे। अल्लाह ने बचा लिया, अग लग जाती तो नानिया दादियां दी प्रॉपर्टियां दे के भी जान नहीं सी छुट्टी। मैं समझा उसका अब्बू है, तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, तुम सिगरेट पी रहे हो। अच्छा, ये हमने खुद ही अज्यूम कर लिया है कि सिगरेट सुलगाने पे उसको मार रहा है, हो सकता है कोई डाकू समझ के मार रहा है। नहीं, इतने भी मासूम डाकू नहीं है, उन्हें चपेड़ा पईयां तो पिछली सवारी आराम से उतर के साइड पे। पेट्रोल पंप पे सिगरेट लगाएगा तो फिर ऐसे ही होगा। ये जो पिछली सवारी फौरन उतरी है ना पहले थप्पड़ पे, ये अपने दोस्त से सारी जिंदगी कहता रहा होगा, वो तेरे नाल जीना मरना शहजादे सारी जिंदगी, जिथे तेरा लहू डिगेगा मेरा पसीना डिगेगा। मरना जीना साथ हो सकता है, लेकिन चपेड़ा अपनी अपनी। पहली चपेड़ ते जुदा हो गया। अच्छा, अक्सर हम एक तरह उन वीडियोस को सिलेक्ट करते हैं, तस्वीरें भी देखते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा माशरा कितना बेहिस हो चुका है। ये देखें, इससे ज्यादा खतरनाक हरकत हो सकती है। ये ओह माय गॉड, सिर्फ देखो खोती रेडी के पैसे बचाने के लिए बंदा खुद खोतियों वाली हरकतें शुरू कर देता है। कैसी बेवकूफ़ी है, अल्लाह पाक से खैर खैरियत से रखे। भाई चंद पैसों को बचाने के लिए आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। हाँ जी, देखो ना, ये ना बांधा हुआ है किसी चीज़ के साथ ना कुछ, और इतना वजनी गार्डर, ये अल्लाह ना करे को मोटरसाइकिल स्लिप हो या गार्डर ऊपर से गिर जाए, को साथ जाते हुए किसी को लग जाए, और जितना वजनी गार्डर है लाजमन को किसी ना किसी का को फ्रैक्चर हो जाए, और इतना वजनी है कि उतारा भी नहीं जाना, इसने घर पहुंचना है, मिस्त्रियों ने इसके ऊपर ही लेंटर डाल दिया। यार हमें फजूल बात ना किया करो, इसके ऊपर तो गुसलखाना नहीं बनना। तुम ये देखो, मैं ये सोच रहा हूँ कि जितना बांधा शांधा भी नहीं हुआ, अंदाजे से ही लेके जा रहा है, जितना अच्छा इसका अंदाजा है, मकान बना ही क्यों रहा है, अंदाजे से ही रहता रहे। घर इसने पहुंचना ही है तो इसके दो बच्चों ने, एक ने एक सिरे पे बैठ जाना है, एक ने एक सिरे पे शीशा लेना शुरू कर देना। इन्हें बाद जो अपने पोतरियां नु कहना करना, किचन वाला गार्डर ताड़ा दादा अपनी धौन ते ले आया। महल्ले ना ही पैना अख्तर गार्डर। अच्छा भाईजान, आपको एक डांस की वीडियो दिखा रहा हूँ, ये देखिए। क्या कहने, अरे तो देखो यार कैसे उन्होंने क्या कहने। ये टाइम भी इस तरह ही बताते हैं, 1:03। लो जी, मुझसे शर्त लगा लो, इस वीडियो के ऊपर ना भाज ने घर रिहर्सल जरूर कर। ये जो दोनों नौजवान जो कर रहे हैं, इनके दादे की वफात भी इसी तरह ही हुई। नहीं है तो यार डिसेंट सा डांस ही ना। मेरा ख्याल है तुम इस बात पे जरूर सोचोगे कि इतना को तो मुझे भी सीख ही लेना चाहिए। सारा जी अचानक वीडियो रुकी ना, मनो या ना मनो, एक दा पट्ठा खिंचे आ गया। आहा 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 आहा। शुक्र है बस गर्दन तक आके रुक गए। लगता है मुंह दोनों के इको शेल्फ पे पड़े हुए, जैसे एक शेल्फ पे पड़े हुए एक किताब को छेड़े तो अगली भी तोड़ पड़ती है, उस तरह हो रहा है। नाज़रीन, ये था आज का अस्पहाल, और आज की छोटी सी बात ये कि मर्दों की ये सोच बिल्कुल गलत है कि औरत को सिर्फ पैसा चाहिए होता है। औरत को इज्जत, प्यार, तवज्जो, गाड़ी, बंगला, जेवर और बहुत सा पैसा चाहिए। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।